Morning, students. Today I will discuss on housekeeping department, unit 1, interior decoration, and the topics are lighting, its classification and its importance. So this topic comes under interior decoration. Interior decoration is a vast topic or vast unit. So first we will discuss about lighting. So before going further, what is light? Light can be defined as a form of energy that enables eye to see. Light plays an important role in the comfort and safety of occupants of the building. Lighting contributes to the decor of a room and should be both decorative as well as functional without causing glare or appearing flat and dull lighting needs. So light plays an important part in the comfort and safety of the occupant of building. Like color, texture, pattern, lighting contributes to the decor of the room. Right? So a good lighting design is realized if all spaces like entry, work area, public area, exit, etc. are composed properly in a clear hierarchy of importance and purpose. Make it possible to see quickly without strain. It promotes the productivity, eliminates hazards. It is really maintainable. It is the energy saving. It is fully utilizes the potential of daylight when available. तो बेसिकली लाइटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर. जैसे कलर, पैटर्न, टेक्सचर ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेम ऐसे लाइटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी होटल के अंदर आपने जैसे ही एंटर करा, आप इन द सेंस गेस्ट ने एंटर करा और वहाँ पे पूरा डार्क हो रखा है. गेस्ट अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग किसी लाइट वाले एरिया से, जैसे बाहर से अगर हम अंदर रूम में आते हैं तो हमारे कुछ टाइम के लिए हमारी आइज़ के आगे क्या होता है, सब ब्लैक सा दिखता है ना, ड्यू टू ब्राइट लाइट. क्योंकि बाहर ब्राइट लाइट थी, अंदर थोड़ी डल लाइट थी, तो क्या होता है हमारी आंखों में सब ब्लैक सा होता है. सेम इन द केस जैसे गेस्ट है होटल के अंदर एंटर करता है तो बाहर से जब अंदर आ रहा है और अंदर बहुत डल लाइट हो तो उससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें दिखने में प्रॉब्लम होगी, है ना. तो इसीलिए लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. या तो लाइट सनलाइट आनी चाहिए अंदर, या फिर आर्टिफिशियल लाइट आनी चाहिए. आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड है, जो हम लोगों ने बनाई है. जब जिस रूम में या जिस एरिया पे सनलाइट नहीं आ पाती, वहाँ पे हम इल्यूमिनेट किससे करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट से. तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बोल सकते हैं एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट है इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर. तो अब लाइट के बारे में हमें पता चल गया लाइट क्या होती है. अब कितने टाइप की लाइट होती है, टाइप्स ऑफ लाइट. फर्स्ट है डायरेक्ट लाइट. In case of direct light, the fittings throw the light onto the surface below, producing over bright areas and hand shadows resulting in glare. Example, down lighting. A direct light is hung pointing down to become a down light used to highlight. Direct lighting does not require elaborate electric wiring and may be used to throw light on an empty textured wall. This process is called wall washing. It can also be used to spotlight a collection of pictures. अब डायरेक्ट लाइट वो होती है जो जहाँ पे वो किसी के थ्रू पास नहीं हो रही है, मतलब वो डायरेक्ट आ रही है, तो वो डायरेक्ट लाइट होती है. राइट. इनडायरेक्ट लाइट होती है जो किसी के थ्रू आ रही है, किसी के थ्रू इन द सेंस सपोज वॉल के थ्रू आ रही है या सीलिंग के थ्रू आ रही है, मतलब डायरेक्ट उसका कहाँ पे पड़ रहा है, फोकस वॉल पे पड़ रहा है और वॉल से फिर वो जगह पे पड़ रहा है या एरिया पे पड़ रहा है, तो ये इनडायरेक्ट लाइट होगी. राइट. तो हम पढ़ लेते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग क्या होता है. इनडायरेक्ट लाइटिंग इज प्रोड्यूस बाय अ लाइट सोर्स दैट इज हिडन. द लाइट इज डायरेक्टेड टू द सीलिंग और अनदर सरफेस फ्रॉम विच it is reflected back into the room. Indirect lighting creates no shadows when used next to the ceiling. Indirect lighting reflected down from the ceiling tends to raise the ceiling height. Example of lighting. Canister shapes are used in a variety of locations on the floors, in corners of rooms,
at either side of sofa or behind plants. Now third one is diffuse light. When fittings are completely closed or concealed, the light is diffused as it passes through cover. अब डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट और थर्ड है डिफ्यूज लाइट. डायरेक्ट लाइट होती है जो डायरेक्ट आ रही है, जो किसी के पास करके नहीं आ रही, किसी के थ्रू नहीं आ रही है, ठीक है. तो और इनडायरेक्ट लाइट वो होती है जो किसी के थ्रू आ रही है. याद नहीं, मैंने जो एग्जांपल बताया था, सपोज कोई लाइट है वो पहले सीलिंग में पड़ रही है और फिर उस पर्टिकुलर एरिया में आ रही है, तो वो पहले कहाँ पे पड़ रही है, सीलिंग में पड़ रही है या वॉल पे पड़ रही है, तो वो इनडायरेक्ट लाइट होगी. अब डिफ्यूज लाइट क्या होती है? डिफ्यूज लाइट होती है, जैसे हम इसका एग्जांपल कह सकते हैं, जो लैम्प्स होते हैं, टेबल लैम्प्स जिसके ऊपर शेड लगा होता है, ठीक है. तो बल्ब जल रहा है अंदर या CFL जल रहा है और उसके बाहर से कवर कर रखा है उसको किसी शेड में, ठीक है, तो वो डिफ्यूज लाइट होती है, राइट. तो उन्होंने अभी यही बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइटिंग, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन ऑल द डायरेक्शंस. हियर सम लाइट इज डिफ्यूज थ्रू बोल एंड सम लाइट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ceiling. Semi-direct, in semi-direct fixtures 60% of light is directed down to work surface and remaining amount is directed upwards. Semi-indirect, it is converse of semi-direct. Here 60%, 90% of light is directed to the ceiling and other 10%, 40% is directed toward work surface. Now importance of lighting. अब क्या importance है, क्यों lighting important है, क्यों important है? Create an inviting space for guests by giving some attention to the details. It only takes a split second to make a good impression when a guest first enters a room, so make it count with warm and inviting hospitality lighting. तो क्यों lighting important है होटल में, क्यों important है? पहला पॉइंट उन्होंने बताया है कि सपोज किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए, ठीक है, कोई बहुत अच्छा वॉल डेकोर है या बहुत अच्छी पेंटिंग है, अगर आप उसमें लाइट लगा दोगे तो एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, वहाँ पे फोकस अच्छा पड़ता है, तो इसलिए एक लाइटिंग इम्पॉर्टेंट है. दूसरा, द राइट लाइट गिव्स अ होटल रूम अ ब्राइट एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर. द रॉन्ग लाइट कैन ruin a nicely decorated room. Here are some of the biggest reasons to focus on attractive and functional LED lighting for your guests. तो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप सपोज गेस्ट होटल के रूम के अंदर गया और उसे रूम बहुत डार्क दिख रहा है, लाइट बहुत ब्राइट नहीं है, तो वहीं पे एक रॉन्ग इम्प्रेशन गेस्ट के ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है. तो वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं होगा गेस्ट के लिए, ठीक है. तो वो क्या कर देगा, एक तरह से बर्बाद कर देगा, रूइन कर देगा जो रूम होगा, रूम का जो डेकोरेशन होगा उसको बर्बाद कर देगा अगर वहाँ पे लाइट अच्छी नहीं है, ब्राइट नहीं है. तो इसीलिए क्या होता है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ में रूम्स को अट्रैक्ट करने के लिए LED लाइटिंग सिस्टम करा होता है. दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लुएंस मूड. प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी लाइटिंग इन्फ्लुएंसेस द मूड ऑफ योर गेस्ट. वेल पोजिशंस लाइट encourage positive feelings. LED lights mimic natural daylight, which is an improvement from yellow-hued traditional lights. Lighting that adjusts at night allows for a more restful sleep. Most fluorescent lights cannot be dimmed. LED lights offer many dimming options. अब एक हमारे ये मूड, गेस्ट के मूड को भी इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ावा देता है लाइटिंग. जैसे सपोज पहले क्या होता था, जो येलो कलर की लाइट होती है, येलो बल्ब जो होते थे पुराने टाइम में, वो क्या करते थे, एक मतलब थोड़ा इरिटेशन या इस तरह से वो, क्योंकि लाइट क्या होती थी, येलो कलर की आती थी. अब LED लाइट्स लग गई, तो LED क्या होती है, ये सनलाइट का एक तरह से हम बोल सकते हैं एक सेकेंडरी हो गया, मतलब सनलाइट तो क्या हो गई, प्राइमरी हो गया, और उसी के फॉर्म में हमने उसी को मैन मेड या आर्टिफिशियली हमने उसको LED लाइट कर दिया है. तो वो जस्ट एक तरह से बोल सकते हैं एक कॉपी है सनलाइट का, रूम्स को लाइटिंग करने के लिए. तो ये इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, मूड का भी बहुत फ़र्क पड़ता है. एक्टिवेट द सेंसेस. बैड लाइटिंग कैन मेक योर डेकोर, फूड एंड फर्नीचर लेस अपीलिंग. Great lighting invigorates your guest senses even beyond sight. Take the time to analyze the hospitality of your lighting. Is it inviting? Does it promote a more engaged guest experience? Luxurious room with thick duvet covers and fine furniture can be presented in the best way possible.
Rich entries and decadent desserts can be much more appetizing with the proper LED lights, levels and colors. तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, क्यों लाइटिंग इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, उसके लिए थर्ड है एक्टिवेट द सेंसेस, या गेस्ट के सेंसेस को एक्टिवेट करता है, राइट। अगर आपके होटल में या रेस्टोरेंट में लाइटिंग अच्छी नहीं होगी तो वो डेकोर को और अच्छे से नहीं दिखा पाएगा, आपके होटल का जो डेकोरेशन है उसको और अच्छे से नहीं दिखा पाएगा। फूड फर्नीचर जो होगी वो लेस अपीलिंग लगेंगी, राइट। तो इसीलिए भी या लग्जरियस रूम होते हैं, वहाँ पे अगर अच्छी लाइटिंग नहीं है तो वहाँ पे गेस्ट के माइंड में एक क्या हो जाएगा, एक रॉन्ग इम्प्रेशन जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड कन्वीनियंस। इफ़ अ गेस्ट नीड्स टू गेट वर्क डन एंड इजंट प्रोवाइडेड विद द right lighting conditions, you could potentially lose a customer. Get ready for a big night out on the town is much more difficult if the light is poor. Even reading a good book can be challenging without enough lamp illumination. Guests might not consciously notice these shortcomings, but they will certainly notice the convenience of good lighting when they find accommodation that do provide it. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट, कितने टाइप की लाइट होती है, कैसे क्लासीफाई करा है लाइट को। नेचुरल लाइट क्या होती है, जो सनलाइट होती है उसको नेचुरल लाइट बोलते हैं। डे लाइट प्रोवाइड्स नेचुरल लाइट एंड वेराइज अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द सन एंड टाइम ऑफ द डे। लाइट इज नेसेसरी फॉर कलर विजिबिलिटी। टेक्सचर्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड बाय देम। सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल लाइट मीन्स मैन मेड, जो इंसान ने बनाई है लाइट, वो आर्टिफिशियल लाइट होती है। दे आर टू टाइप्स, इनकैंडेसेंट लाइटिंग। इन दिस टाइप ऑफ लाइटिंग टंगस्टन फिलामेंट इज सील्ड, जो पहले टाइम में बल्ब होता था जिसके अंदर टंगस्टन आता था। आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में, तो बल्ब का एक स्ट्रक्चर होता था, अंदर उसका फिलामेंट, टंगस्टन्स, वो सारी चीज़ें लेबल किया होता था। तो वो जो पुराने टाइप के जो बल्ब होते थे उनको वो आते थे इनकैंडेसेंट लाइटिंग के अंदर। इन दिस टाइप ऑफ लाइटिंग टंगस्टन फिलामेंट इज सील्ड इन अ ग्लास बल्ब and heated to a point at which it glows. The glass bulbs are usually made of standard lined glass, heat resistant borosilicate glass which permits higher voltage use for outdoor lighting. Symbols are finished with an acid solution from inside which etches the glass and gives a frosted effect. Second one is fluorescent lighting. दिस कंसिस्ट ऑफ सील्ड ग्लास ट्यूब, जो ट्यूब लाइट हम बोल सकते हैं वो उसका एग्जाम्पल है फ्लोरोसेंट लाइटिंग का। और इनकैंडेसेंट का जो एग्जाम्पल है, जो बल्ब आते थे पहले येलो कलर के जो होते थे, येलो लाइट जो देते थे, विच कंटेन्स मर्करी एंड हैलोजन गैसेस। इट हैज़ इलेक्ट्रोड्स एट ईच एंड एंड ऑन द इनसाइड। द टब इज कोटेड विद अ फ्लोरोसेंट मटीरियल कंटेनिंग phosphorus. When a current is passed, the mercury vapor emits ultraviolet light which is converted into visible light by the phosphorus on the inside surface of the tube. The lifespan of the incandescent lamp would be 750 to 2000 hours and of fluorescent light 1800 to 20,000 hours. Fluorescent lamps are suited for lower ceiling application and generally lighting they provide diffuse lighting. अब इन्होंने डिफ्रेंशिएट भी बताया है। इनकैंडेसेंट लाइट का जो R होता है, जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब कितने टाइम तक वो ठीक रह सकते हैं, चल सकते हैं, वो होता है 750 टू 2000 आवर्स। और फ्लोरोसेंट लाइट का जो होता है लाइफ स्पैन वो होता है 1800 टू 20,000 आवर्स। तो ये इन दोनों का डिफ्रेंशिएट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट क्या होती है, दो टाइप की लाइट्स होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल दो टाइप की होती है, इनकैंडेसेंट लाइटिंग और फ्लोरोसेंट लाइटिंग, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।